My dear students, once again welcome to all of you. In previous video lecture, student, we have studied many important point which is related to practice set 1.1, like as what is a line, what is a line segment, what is a point, what is a ray, and what is a collinear points. And student, ray, what is a collinear points. And after completing first exercise, student, in this video lecture we are going to solve practice set 1.2. Student, before starting practice set 1.1, first we will discuss important points which is related to practice set 1.2. Student, for practice set 1.2, something is related we will study first. Student, first point we will study what is congruent segments. What is congruent segment? Student, what is congruent segment? You know what is segment? Segment आपको मालूम है. What is a segment? Student, segment is a part of a line. जो लाइन होता है, लाइन का कोई हम लोग पार्ट कट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज सेगमेंट. एंड स्टूडेंट, सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड सेगमेंट हैज अ फाइनाइट लेंथ. सेगमेंट के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स? स्टूडेंट, इफ टू और मोर सेगमेंट्स हुज लेंथ्स आर इक्वल, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है? दो सेगमेंट या दो से ज्यादा सेगमेंट जिसका लेंथ इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. देन फर्स्ट राइट डाउन इट्स डेफिनेशन. टू और मोर सेगमेंट्स whose lengths are equal. Two or more segments whose lengths are equal. Whose lengths are equal. क्या मीनिंग इसका स्टूडेंट? टू और मोर सेगमेंट मतलब दो या दो से ज्यादा सेगमेंट whose lengths are equal, जिसका लेंथ इक्वल होता है, then they are called congruent segment. Then they are called congruent segment. Then they are called congruent segments. Students, suppose that, consider one example. For example, suppose that we have a segment AB whose length is 5 cm. We consider segment AB and length of segment AB. You know this symbol is segment. Segment AB, its length is 5 cm, and we consider another segment, suppose that segment CD, and its length is suppose that 5 cm. Now student, you see there are two segments, segment AB and segment CD, and whose lengths are equal, 5 cm each. So students, we can say these two segments, segment AB and segment CD, are congruent segments. Student, therefore length of segment AB is equals to length of segment CD. Therefore we can say segment AB is congruent to segment CD. You know student, this symbol is known as congruent. Segment AB is congruent to segment CD. तो दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब दोनों का लेंथ इक्वल होगा. एवरीबॉडी इज क्लियर? नाउ properties of congruent segments. Now properties of congruent segments. Properties of congruent segments. Congruent segments की प्रॉपर्टी क्या होती है? Student, there are three properties. How many properties are there? Three properties are there. Student, first property is known as reflexivity. First property is known as reflexivity. What is this? Reflexivity means क्या होता है? स्टूडेंट, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. हर एक सेगमेंट
अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्सिविटी। एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट इसका? एवरी सेगमेंट मतलब हर एक सेगमेंट अपने आप का ही कॉन्ग्रुएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सपोज दैट वी हैव कंसीडर अ सेगमेंट ए बी। दिस सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये सेगमेंट ए बी अपने आप का ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, हर एक सेगमेंट अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। एंड नाउ स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी इज नोन एज सिमेट्री। Second property is symmetry. Student, in symmetry we consider two segments. If first segment is congruent to second segment, then second segment is congruent to first segment. If segment AB is congruent to segment CD, then second segment CD is also congruent to first segment AB. Now symmetry is clear. Student, in reflexivity we consider only one segment. Every segment is congruent to itself. हर एक सेगमेंट अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। एंड नाउ इन सिमेट्री वी कंसीडर टू सेगमेंट्स। if first segment is congruent to second, then second segment is congruent to first. In symmetry we consider two segments, segment AB and segment CD. If segment AB is congruent to segment CD, then segment CD is congruent to segment AB. Now third property is transitivity. First property is transitivity. What is the transitivity? In transitivity we consider three segments. If first segment is congruent to second and second segment is congruent to third, then third segment is congruent to first. Student, this property is known as transitivity. If segment AB is congruent to segment CD and segment CD is congruent to segment PR, then third segment is congruent to first, then segment PR is congruent to first segment AB. Okay student, properties of congruent segments. Student, there are three properties. First one is reflexivity, second is symmetry, and third one is transitivity. What is the reflexivity? Student, in reflexivity we consider only one segment and every segment is congruent to itself. And in this we consider an example AB, segment AB, and this segment AB is congruent to itself. It means AB is congruent to AB. And in symmetry we consider two segments, AB and CD. If AB is congruent to CD, then CD is congruent to AB. मतलब पहला सेगमेंट अगर दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? फर्स्ट सेगमेंट के। नाउ ट्रांजिटिविटी, इन ट्रांजिटिविटी वी कंसीडर थ्री सेगमेंट्स कौन कौन सा कंसीडर किया है? ए बी सी डी एंड पी आर. इफ फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड and second is congruent to third, then third one is congruent to first segment. Okay student, properties of congruent segments are clear. Okay, now next one is midpoint of a segment. Okay student, then pause the video and note down this. Midpoint of a segment. What do you mean by midpoint? Student, midpoint means middle का point. Suppose that we have a segment AB. And any point M divide this segment AB in two equal parts. Okay student, we consider a segment AB and a point M divide this segment into two equal parts. कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? टू इक्वल पार्ट्स में. देन दिस पॉइंट M is called midpoint of segment AB. Now write down, if
इफ पॉइंट m डिवाइड्स, किसको डिवाइड्स कर रहा है पॉइंट m, इफ पॉइंट m डिवाइड्स सेगमेंट AB in two equal parts, that is AM is equals to MB. Point M divides segment AB. Point M, this is point M, divides segment AB in two equal parts, that is AM is equals to MB. If AM is equal to MB, it means M is midpoint of segment AB. It means point M is midpoint of segment AB. Okay student, this one is clear. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं. Suppose that point P divides AB, segment AB. Point P divides segment AB in two equal parts. That is, what is meaning of this? Point P divides AB in two equal parts. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, point P is midpoint of segment AB, and AB suppose that 10 centimeter. Find AP. Then how to find AP? Students, once again I repeat it. Point P divides segment AB in two equal parts. What is meaning of this? P is midpoint of segment AB. पॉइंट P क्या कर रहा है? सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? पॉइंट P. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट P है सेगमेंट AB का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. देन एंड इफ AB इज इक्वल्स टू 10, देन फाइंड AP. डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो दिस इज सेगमेंट AB एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड P is its midpoint. Okay student, P is its midpoint. Then AP is equals to PB. Then how to find AP? Student, P is midpoint. तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंस P क्या है? मिड पॉइंट है. P is मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. P किसका मिड पॉइंट है? सेगमेंट AB का. तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP इज इक्वल्स टू PB. क्या लिख सकते हैं? AP इज इक्वल्स टू PB. और AP AB का हाफ होगा, AB का हाफ AP होगा और AB का हाफ PB होगा. तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोथ द सेगमेंट्स आर इक्वल टू हाफ ऑफ सेगमेंट AB. अंडरस्टूड दिस स्टेप? Understood now this step? AP is equals to PB and both the segments means segment AP and segment PB, both the segments are half of the segment AB. AB का हाफ A होगा AP और AB का ही हाफ क्या होगा? PB होगा. Now we will find AP. AP is equals to student half into AB. AB कितना दिया है? 10. Then 10 divided by 2, 2 5, therefore AP is equal to 5 centimeter. Understood this concept? Understood now? Okay student, pause the video and note down this. And student, after midpoint of a segment, point is comparison of segments. इसके बाद कौन सा पॉइंट है? कंपेरिजन ऑफ सेगमेंट्स. मतलब कोई भी दो सेगमेंट दिया है, हाउ टू कंपेयर एनी टू सेगमेंट्स. फर्स्ट वी सी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट
comparison of two segment, it means we decide which segment is bigger and which segment is smaller. Clear? Everybody is clear? What do you mean by comparison of segments? कंपेरिजन ऑफ सेगमेंट्स का क्या मतलब? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कंपेयर द फॉलोइंग सेगमेंट्स, इट मीन्स वी डिसाइड which segment is bigger and which segment is smaller. Okay student, after this रे ए बी, रे हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइन भी पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेज, परपेंडिकुलरिटी. Next point is perpendicularity of segments or ray. Perpendicular, you know what is perpendicular? Student, if two segments, suppose that we have a segment AB and other segment, suppose that CD, other segment is CD. Student, if two segments making 90-degree angle with each other, if two segments or two rays or one segment and other rays making an angle of 90-degree, then student we can say this segment is perpendicular to segment CD. Now student, we can write this segment AB is perpendicular, this symbol is perpendicular. Okay student, this segment is perpendicular. Segment AB is perpendicular to segment CD. Segment AB CD पर क्या है? परपेंडिकुलर है. क्यों परपेंडिकुलर है? क्यों? एक दूसरे से कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल. If one segment making an angle of 90 degree with other segment, then student we can say both the segments are perpendicular of each others. Okay, perpendicularity of segments or ray, this one is clear. Okay student, now distance of a point from a line, distance of a point from a line, distance of a point from a line. Students, suppose that we have a line L and we have a point A. How to measure distance of this point from this line? कैसे मेजर करेंगे? ये पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं? स्टूडेंट, ऐसे तो डिस्टेंस ऐसे बहुत सारा हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस नहीं होगा. What is the distance between this point and this line? Always student, draw the perpendicular from the point to the line. हमेशा इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. स्टूडेंट, दिस सपोज दैट दिस पॉइंट इज बी. ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड लाइन एल. ओके स्टूडेंट, पॉइंट ए से लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैसे हम लोग मेजर करेंगे? ऑलवेज ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. Okay student, this AB is perpendicular to this line, therefore this AB is distance between point and this line. Now AB is distance between the point A and line L. Okay, everybody is clear? This is line L and this is any point. How to measure distance of this point from this line? मतलब किसी लाइन के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? तो ये हमेशा याद रखो, उस पॉइंट से इस पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. देन स्टूडेंट, दिस सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड लाइन एल. Okay student, this one is clear. Now we will start practice set 1.2. Okay student, now we are going to solve questions of practice set 1.2. Okay student,
we are going to solve questions of practice set 1.2. Now see your first question on your screen. See your first question. Please pause the video and note down the question. Okay student, as you see, first question is, the following table shows points on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. ये जो टेबल आपको दिख रहा है, पॉइंट दिया है और उसका कोऑर्डिनेट दिया है, और टेबल के नीचे दिया है, फर्स्ट वन इज गिवन दैट सेगमेंट DE, क्या दिया है, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB. तो क्या डिसाइड करना है स्टूडेंट? डिसाइड सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. ओके, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये देखो टेबल में पॉइंट दिया है और उसका कोऑर्डिनेट दिया है, और उसके नीचे लिखा है सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB. स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन डिसाइड सेगमेंट्स DE एंड सेगमेंट AB आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. हमको डिसाइड करना है सेगमेंट DE और सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट हैं क्या. कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ लेंथ्स ऑफ टू सेगमेंट्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स फर्स्ट वी विल फाइंड segment DE and after we will find segment AB and then we decide segments are congruent or not. Okay student, now how to write its solution? Segment DE, first we will find segment DE. Student, segment DE फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट DE, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेगमेंट DE लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ D. तीनों का मीनिंग सेम होता है. ओके स्टूडेंट, चाहे क्वेश्चन में ऐसा पूछा डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स D एंड D, या फिर ऐसा फाइंड सेगमेंट DE, या फिर ऐसा फाइंड लेंथ ऑफ सेगमेंट DE, तीनों का मीनिंग सेम है. तो हम लोग क्या यहां पर निकाल रहे हैं, सेगमेंट DE. देन वी हैव टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D. What is the coordinate of point D? Student, see in table coordinate of point is -7. And what is the coordinate of point E? What is the coordinate of point E? Student, coordinate of point E is 9. After writing the coordinate, decide which coordinate is bigger and which coordinate is smaller. Now student, this is -7 and this is +9. Positive numbers are always bigger than negative number. So student, since 9 is bigger than -7, क्या हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सेगमेंट DE. क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेगमेंट DE. जैसे आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सेम वैसे ही फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला क्या लिखते हैं, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस क्या लिखते हैं, स्मॉलर कोऑर्डिनेट. बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्मॉलर कोऑर्डिनेट. ओके, everyone is clear about the formula? This is the formula. Then student, segment DE, bigger coordinate, which one is bigger, 9. Then write the minus sign which is in the formula, write minus sign. Then smaller coordinate is -7. Then 9, this minus into minus +7, 9 plus 7 is equal to 16. Student, segment DE, this is 16 unit. Okay, clear? And then after this we will find segment AB. इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सेगमेंट AB. तो आओ सेगमेंट AB निकालते हैं. देन फर्स्ट राइट डाउन एंड नाउ क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सेगमेंट AB. देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A? -3.
एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 5, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5 दिया है, सो व्हिच कोऑर्डिनेट इज बिगर स्टूडेंट, नाउ सिंस 5 इज बिगर देन -3, ये बताया अभी आपको पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव नंबर्स। देन फाइंड सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सेम क्वेश्चन में आप एक बार फार्मूला लिखा है तो दो बार आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बिगर कोऑर्डिनेट विच वन इज बिगर 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -3, देन दिस इज माइनस इंटू माइनस +3, 5 + 3 इज 8, segment AB is equals to 8. Now student, we get segment DE is 16 unit and segment AB is 8 unit. Now can you decide segments are congruent or not? अभी आप डिसाइड कर सकते हैं क्या दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। सेगमेंट DE कितना है 16 है, सेगमेंट AB कितना है 8 है, दोनों का लेंथ इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, देन वी कैन से सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देन वी हैव टू राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 segment DE means this segment is not congruent। ऐसे कॉन्ग्रुएंट का साइन इसको ऐसे हम लोग कट कर देंगे, जैसे लिखते हैं दिस इज इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, so segment DE is not congruent to segment AB. Okay student, clear? This sum is clear now. Now pause the video and note down the solution. Okay student, now second part of question number 1. Second part, decide segment BC and segment AD. क्या डिसाइड करना है, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। क्या डिसाइड करना है, ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जब इनका लेंथ इक्वल रहेगा। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड सेगमेंट BC, देन राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ B, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C 2, then segment BC is equals to bigger coordinate minus smaller coordinate. अच्छा, after writing this decide which coordinate is bigger, which coordinate is bigger 5 or 2, student 5 is bigger than 2. Okay, then find segment BC bigger coordinate minus smaller coordinate, तो 5 minus 2 is 3 units. This is the value of segment BC, or we can say this is the measure of segment BC. Now we will find segment AD. What is the coordinate of point A? Point A का coordinate कितना है -3 and what is the coordinate of point D? Point D का coordinate कितना है -7. Then segment AD bigger coordinate, which one is bigger? Okay student, before writing this decide which coordinate is bigger. Then which coordinate is bigger, -3 or -7? Student -3 is bigger than -7. क्यों? नंबर लाइन ऐसा होता है, नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में जाते हैं नंबर बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं नंबर छोटा होता जाता है। तो -3 मान लो यहाँ कहीं आ रहा है -3, तो -7 इधर कहीं आ जाएगा, तो -3 इज बिगर देन -7। नंबर लाइन पर जो राइट में नंबर है लेफ्ट से बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट, देन -3 इज बिगर देन -7। देन segment AD bigger coordinate -3, then minus smaller coordinate -7, this is -3, this is minus into minus +7. Now segment AD, student here numbers having opposite sign, one number is
negative sign and other number is in positive sign. Student, if numbers having opposite sign, then we subtract smaller number from bigger number and we have to write the sign of bigger number. Okay student, अगर numbers का sign opposite है, अपोजिट मतलब एक प्लस में है दूसरा किस में है, माइनस में है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं. किसको माइनस करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या करते हैं, माइनस करते हैं. बट वी हैव टू राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर. व्हिच नंबर इज बिगर, 7. साइन ऑफ दिस इज प्लस, 7 माइनस 3 इज 4. और एक चीज, सेगमेंट एडी. Segment AD means distance between points A and D, and distance between any two points always positive. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है. सो स्टूडेंट प्लस लिखने की यहां जरूरत नहीं है. लेट दिस इज इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कैन यू डिसाइड सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ऑफ length of segment BC is 3 unit and length of segment AD is 4 unit. Now from equation, okay student, now from equation 1 and 2, now from equation 1 and 2, segment, this segment BC is not congruent to segment AD. ओके स्टूडेंट, क्लियर ना. अभी इसमें जो बाकी का सम है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको ट्राई करना. ओके स्टूडेंट, नाउ सी योर सेकेंड सम. सेकेंड सम इज ऑन योर स्क्रीन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन. स्टूडेंट, सेकेंड सम इज पॉइंट M is the midpoint of segment AB. Point M is midpoint of segment AB. If AB is equals to 8, then find the length of AM. Okay student, according to question, draw the diagram. Point M is midpoint of segment AB. So student, draw a segment AB and its midpoint is M. M is midpoint of segment AB. Segment AB का midpoint M है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम. दिस पॉइंट M is midpoint of AB. So this AM is equals to MB. Now we have to write, since M is midpoint. M क्या है, midpoint है. किसका midpoint है, of segment AB. Okay student, and length of AB is given that 8 and we will find AM. क्या find out करना है, AM find out करना है. Okay, everybody is clear ना, question is clear ना. Point M is midpoint of segment AB and AB, this segment AB, length of this segment AB is given that 8 units and we will find AM. Okay student, since M is midpoint of AB, therefore we can write this AM is equal to MB. Okay student, this AM is equals to MB and both the segments, these two segments, both the segments is half of segment AB. This formula is clear. Okay student, we will find AM. So we consider this AM. इसकी जरूरत नहीं है, हमको फाइंड आउट नहीं करना है. Therefore this equal half into AB. AB की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 8. तो यहां पर 8 पुट कर दिया. दिस 8 कैंसल आउट बाय 2. 2 1 जा 2 4 जा. दिस इज इक्वल्स टू 4. अपान में कितना आया, 1. अपान में 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. तो देयरफॉर स्टूडेंट AM इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर सेकेंड सम. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट्स सॉल्यूशन. नाउ स्टूडेंट, सी योर थर्ड क्वेश्चन. What is third question? Point P is the midpoint of segment CD. CP is given that 2.5.
find length of CD. Okay student, according to question, first draw the diagram. Point P is midpoint of segment CD. Then student, first draw segment CD, and P is its midpoint. P is midpoint of segment CD, therefore CP is equals to PD. Now we have to write, since point P is midpoint of segment CD, and CP is given that CP कितना दिया है 2.5, and we will find length of CD. क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ CD. Which segment is given? This segment CP is given that 2.5. We will find CD. Student, you know this point P is midpoint of CD. CD का midpoint है, तो CP का डबल हो जाएगा CD. Okay? Now we have to write CP. This CP is equals to half of CD. Understood ना? This segment CP इज हाफ ऑफ CD. CD का हाफ है CP. ओके स्टूडेंट, PD हमको फाइंड आउट नहीं करना है, इसके लिए यहां पर हमने PD को मेंशन नहीं किया है. ओके स्टूडेंट, देयरफॉर CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. CD इज ओके. CP is given that, so substitute its value. Its value is 2.5. Okay, half of CD. These two taken this side becomes in multiplication. This is in division. When we take these two in this side becomes in multiplication. This is equals to CD. 2.5 into 2. 2 5 ja 10. 2 2 ja 4. 1 carry 5. 5.0. This is CD. So we have to write answer is CD is equal to 5.0. पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है. So CD is equal to 5 units. Okay student, this is the answer. Note down the solution. Okay student, now fourth question. Fourth question is on your screen. Note down the question. And what is the fourth question? If AB is equal to 5, this segment AB is equal to 5, and BP is given that 2 centimeter, and AP is given that 3.4 centimeter, then compare the segments. क्या करना है हमको? Compare the segments. When we compare the segments, then we decide which segment is bigger and which segment is smaller. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा compare the segment, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है. सो स्टूडेंट, इन देयर आर 3 सेगमेंट्स, सेगमेंट AB, सेगमेंट BP एंड सेगमेंट AP. एंड आउट ऑफ दीज 3 सेगमेंट, व्हिच सेगमेंट इज बिगेस्ट? स्टूडेंट, AB. सेगमेंट AB is bigger than segment AP, and student, this segment AP is 3.4. This segment AP is bigger than this segment BP. Student, this is comparison between the segments. तो यहां से क्या हमको समझ में आया? AB जो है AP से बड़ा है, AP जो है BP से बड़ा है. या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले स्मॉलेस्ट सेगमेंट लिख दो. Which segment is smallest? BP इज लेस देन, किससे छोटा है ये? AP से. एंड AP इज लेस देन AB. नाउ क्लियर ना? दिस सम इज क्लियर ना? When we compare segments, then student we decide which segment is bigger and which segment is smaller. Okay, now note down this. Okay student, now fifth sum. Fifth question is write the answers. Fifth question is on your screen. Please note down the question. Okay student, write the answers to the following questions with reference to the figure given below. Student, in this sum, in question number 5, one number line is given. Student, this is not a number line because of there are not numbers, only points are there. Means this is a diagram.
in question number 5. First question is write the name of the opposite ray of ray RP. Then first we have to write the question. क्या क्वेश्चन है? write the name of the opposite ray write the name of the opposite ray of ray RP. Okay student, understood now this question? Write the name of the opposite ray of ray RP. रे RP इसका अपोजिट रे लिखना है. व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट रे? अपोजिट रे मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टू रेज आर सेट टू अपोजिट रेज इफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉमन एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. ओके स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट रेज? इफ टू रेज having a starting point, having a common origin and their directions are opposite. Suppose that this type we have a ray AB, this is one ray and other ray start from point A. दूसरी रे भी पॉइंट ए से स्टार्ट होती है बट इसका direction of ray AB from A to B and this direction, suppose that this point is C. Student, in this diagram there are two opposite ray AB and ray AC. अपोजिट रे समझ में आए क्या? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स ओरिजिन सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए. सो स्टूडेंट, इन दिस डायग्राम रे AB and its opposite ray is ray AC. Okay, now opposite ray of ray RP. Where is RP? RP is in diagram. See carefully. This is ray RP. Okay student, now its opposite ray इसका अपोजिट रे क्या हो जाएगा? R से स्टार्ट होगा तो क्या आप लिखेंगे? RS, रे RS. ओके स्टूडेंट, दिस रे RS इज अपोजिट रे ऑफ RP. RP इधर जा रहा है, RS इधर जा रहा है. अच्छा, RS को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रे RT. दोनों एक ही रे रिप्रेजेंट कर रहा है तो चाहे RS लिखो चाहे RT लिखो. ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? दिस सम इज क्लियर. ओके, नाउ इट्स सेकेंड सम इज write the intersection set of ray PQ and ray RP. Write the intersection set of ray PQ and ray RP. Okay student, this is your second part of this question number 5. Write the intersection set. Student, this intersection यहाँ पर R. Intersection, what do you mean by intersection? Intersection means, student, in algebra first lesson is set. अलजेब्रा में आपका फर्स्ट लेसन है सेट. उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. उसी में आएगा इंटरसेक्शन, यूनियन आएगा. तो इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ पर आप समझ लो कोई भी दो सेट है उसमें दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं. इंटरसेक्शन इज क्लियर ना? कॉमन बिटवीन टू सेट्स, कॉमन थिंग्स बिटवीन टू सेट्स इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स. ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? सपोज दैट वी हैव टू सेट्स. हमारे पास समझो दो सेट है और दोनों सेट में जो चीज़ें कॉमन है उसका हम लोग सेट बनाएंगे. दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ ये समझो कॉमन चीज़, जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन होता है. अच्छा, रे पी क्यू, वेयर इज रे पी क्यू? रे पी क्यू पहले डायग्राम में देखते हैं. वेयर इज रे पी क्यू? स्टूडेंट, दिस इज रे पी क्यू. ये क्या है? रे पी क्यू है. एंड दिस इज रे आर पी.
रे आर पी, आर से स्टार्ट होके किधर जा रहा है, इधर आर पी। स्टूडेंट दिस रे आर पी स्टार्ट फ्रॉम आर एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स पी, आर से स्टार्ट होके पी की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आर से स्टार्ट होके पी तक जाएगा, पी तक नहीं, पी के डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाएगा। सो यू सी इन दिस डायग्राम दिस इज रे पी क्यू एंड दिस इज रे आर पी, दिस इज रे आर पी। तो कैन यू सी कॉमन पार्ट, आपको दिख रहा है क्या कॉमन पार्ट क्या है? ये देखो यहां से दोनों का कॉमन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यहां से, यहां तो ये अकेले, यहां से आया अकेले आया, फिर यहां से देखो मिल गया, दोनों में कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रे पी क्यू। ये दोनों में रे पी क्यू और रे आर पी में कॉमन क्या है, रे पी क्यू कॉमन है। सो इट्स आंसर इज रे पी क्यू। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? नाउ इट्स थर्ड पार्ट is, okay student, now third part, write the union set of ray pq, write the union set of ray pq and ray qr and ray QR। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन और यूनियन। ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन है उसमें हम लोग और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर इसका शॉर्टकट मीनिंग समझ लो। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन होता है। यूनियन मतलब, यूनियन आपको मालूम है सारी चीजों को मिला करके यूनियन बनता है। यूनियन में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यूनियन में समझो हमारे पास दो सेट है, सपोज दैट वी हैव टू सेट्स, वन इज सेट ए एंड अदर इज सेट बी। ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर कंबाइंड फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी इज नोन एज यूनियन। दोनों सेट को मिला के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। तो रे पी क्यू, आइए इसमें डायग्राम में जरा हम लोग देखते हैं। यूनियन रे पी क्यू देखो इधर से यहां ऐसे डायरेक्शन में जा रहे, रे पी क्यू एंड रे क्यू आर इस डायरेक्शन में, रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। ओके सॉरी, यहां से रे क्यू आर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है। सो इट्स यूनियन, इसका यूनियन क्या होगा, दोनों रे को कंबाइंड करके हम लोग इसका क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, क्या हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट द यूनियन सेट ऑफ पी क्यू, रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस फिगर दिस इज रे पी क्यू एंड दिस इज रे क्यू आर। तो दोनों में अगर हम लोग कॉमन चीज की बात करें तो पूरा का पूरा लाइन ही कॉमन हो गया। सो इट्स आंसर इज, वी कैन से रे पी क्यू, लाइन पी क्यू। क्या लिखेंगे इसका आंसर, लाइन पी क्यू। ओके स्टूडेंट, लाइन पी क्यू ले लिया। लाइन पी क्यू समझते हैं ना, इधर इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक। तो दोनों रे का जितना भी पार्ट है इस लाइन के अंदर आ गया। ओके ना, दोनों को मिला के बन गया है लाइन पी क्यू। सो इट्स आंसर इज लाइन पी क्यू। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज, ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ विच रेज। स्टूडेंट, मैं जानता हूं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अलजेब्रा का अगर फर्स्ट लेसन आपने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट लेसन में ही ये सारी चीज़ें हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सेट है, सबसेट है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, स्टेट रेज
क्या हमको बताना है, नेम ऑफ द रेज, विच ऐसी रे बताना है सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। अच्छा, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, सपोज दैट स्टूडेंट वी हैव टू सेट्स, वन इज set A 1 2 3 4 5 and another set B, suppose that this set B contains elements 2 4. Okay student, set A contains 1 2 3 4 5 and set B contains only 2 elements. If all the elements of set B is also an element of set A, then this set B इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। मतलब समझ में आया क्या, मान लो हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट किस में हो, सेट ए में हो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 2 and 4। 2 and 4, these two elements are element of set B, these two elements are also element of set A. Therefore student, this set B is सबसेट ऑफ सेट ए। सबसेट को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हम लोग अलजेब्रा के फर्स्ट लेसन में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ ज्योमेट्री में आ गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं इसको। सपोज दैट वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। अगर बी के सारे एलिमेंट किस में हो, ए में हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी क्या है, बी सबसेट है। किसका सबसेट है, सेट ए का सबसेट है। ओके, सबसेट समझ में आया क्या। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेट द रेज। हमको यहां पर क्या लिखना है, रे का नाम लिखना है, और रे कैसी होनी चाहिए, सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर जिसका सबसेट हो, मतलब जिसके अंदर हो क्यू आर। सबसेट का मतलब यही ना, इसके एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो ये सबसेट है। क्यू आर क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो क्यू आर कौन कौन सी रे के अंदर आ रहा है, तो आइए यहां से देखते हैं। अच्छा, पहले डायग्राम में हम लोग जरा देखते हैं सेगमेंट क्यू आर कहां है। सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर, तो डायग्राम में देखो सेगमेंट क्यू आर, यही है सेगमेंट क्यू आर। अब ये सेगमेंट जो क्यू आर है ना, कौन कौन सी रे के अंदर आएगा, यहां से सबसेट क्लियर हो गया क्या। इसके सारे एलिमेंट किस में है, ए में है, तो हम लोग बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं सबसेट। बी को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। किसका सबसेट बोलते हैं, ए का। इसका मतलब बी इसके अंदर है। तो क्यू आर कौन सी रे के अंदर है, ये देखो क्यू आर यही सेगमेंट है, ये कौन सी रे के अंदर है, रे आर क्यू। रे आर क्यू, रे आर क्यू, रे आर क्यू ऐसे यहां से स्टार्ट होके क्यू के डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाएगी, तो रे आर क्यू के अंदर आ रहा है ये, समझ में आया। इट मींस सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ आर क्यू, अंडरस्टूड। और भी रे का हम लोग नाम लिख सकते हैं, रे क्यू आर, रे क्यू आर, क्या लिख सकते हैं, रे क्यू आर। ओके, अच्छा, और भी अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं रे क्यू एस लिख सकते हैं, रे टी क्यू लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड ना। तो टू आंसर इज सफिशिएंट। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड, नोट डाउन दिस। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट। इट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज with common point, common end point R. Write the pair of opposite rays. Write the pair of opposite rays. क्या लिखना है, pair of opposite rays with common end point R. With common end point R. Okay student, write the pair of opposite rays. pair of opposite rays मतलब दो रे आपको लिखना है, और वो रे कैसी होनी चाहिए, कॉमन एंड पॉइंट आर। दोनों में कॉमन एंड पॉइंट को मैंने बताया था,
ओरिजिन, एंड पॉइंट को और क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ओरिजिन क्या होना चाहिए, आर। इसको ओरिजिन अगर मान ले हम लोग तो एक रे लिख सकते हैं आरपी, दूसरा रे क्या लिख सकते हैं, आरएस लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट इट्स आंसर इज रे आरपी, रे आरपी एंड रे आरएस। ओके, अब यहां से देखो आरपी, रे आरपी, रे आरएस, दोनों में कॉमन एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट आर, एंड बोथ द रेज आर अपोजिट रेज। ओके, अच्छा, और हम लोग इसका आंसर और भी हम लोग लिख सकते हैं, रे आर क्यू लिख सकते हैं, रे आर क्यू एंड रे आर टी लिख दो यहां पर, रे आर टी। लेकिन कंपलसरी क्या है इसमें, बोथ दी रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर, दोनों का ओरिजिन, दोनों का एंड पॉइंट आर ही होना चाहिए। मतलब दोनों रे कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, पॉइंट आर से। एक और दूसरी अपोजिट रे में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो रे आर पी, रे आर एस, रे आर क्यू एंड रे आर टी। ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। नाउ इट्स सिक्स्थ पार्ट, राइट एनी टू रेज with common end point yes, write any two rays, write any two rays with common end point s, with common end point s। write any two rays, कोई दो रे लिखना है, लेकिन कैसी रे लिखना है, विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, विथ कॉमन एंड पॉइंट यस। ये कॉमन एंड पॉइंट समझ रहे हैं ना, कॉमन मतलब दोनों रे में कॉमन होना चाहिए, एंड पॉइंट इज आल्सो नोन एज ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो यहां से राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट यस। तो चलो आंसर इसका रे यस आर लिख दूं, और क्या लिख दूं, रे यस टी, या और यहां से लिख सकते हैं रे यस पी, रे यस क्यू भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड ना? राइट एनी टू रेज, कोई दो रे लिखना है, विथ कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। मतलब जो रे है कहां से स्टार्ट होना चाहिए, यस से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये देखो रे यस आर स्टार्ट फ्रॉम यस, एंड दिस रे आल्सो स्टार्ट फ्रॉम यस, एंड दिस रे आल्सो स्टार्ट फ्रॉम यस। ओके, अंडरस्टूड? नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। एंड इट्स लास्ट वन, सेवंथ। ओके स्टूडेंट, इट्स लास्ट वन इज सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट इज राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी, राइट द इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन पे हम लोग डिस्कस किए से, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन रे ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। कौन कौन सा रे दिया है, रे एस पी एंड रे एस टी, रे एस पी एंड रे एस टी। तो इसका इंटरसेक्शन मीन्स ये दोनों रे में कॉमन चीज क्या है, रे एस पी। तो डायग्राम से देखते हैं रे एस पी कहाँ है, रे एस पी यस से स्टार्ट होके इधर पी के डायरेक्शन में जा रहे, रे एस पी। एंड सेकेंड वन इज रे एस टी, यस से स्टार्ट होके किधर जा रही है, इधर जा रही। तो बताओ कॉमन पॉइंट दोनों में क्या है, कॉमन चीज क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स क्या, कॉमन। ये देखो रे एस पी यस से स्टार्ट होके इधर चली गई, रे एस टी, सेकेंड रे इज रे एस टी, यस से स्टार्ट होके किधर, टी की ओर जा रहे। तो दोनों में क्या पॉइंट यस ही कॉमन दिख रहा है ना। सो स्टूडेंट दिस पॉइंट यस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, point yes is intersection point,
Okay student, point yes is intersection point. Okay, now student note down this. Student, question number 6. See on your screen, this is your question number 6. Please first note down the question. Answer the questions with the help of the figures given below. State the points which are equidistant from the point B. This is first part, and now second part is write a pair of points equidistant from point Q. Okay student, this question is very easy and this question is homework for you. Okay student, now we will see next sum. We will see next sum. Next sum is, okay, sorry, next not the next sum, third part of the same question. Third part is find distance between UV. Find distance between UV. Okay student, तो जैसे डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट, देन आफ्टर राइटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट we decide which coordinate is bigger and which coordinate is smaller, and then we will write distance formula, bigger coordinate minus smaller coordinate, and substitute bigger coordinate then minus smaller coordinate, we get distance between these 2 points. Okay, तो मैं समझता हूं ये भी आप सम कर लेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6, होल क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क फॉर यू. ओके स्टूडेंट,